Hello student, I am Arvind Mishra. Now I am going to teach you the first chapter of your book, The Night View on the View, lecture second. So let's begin. For weeks, a new roadmaster had stood in the window of the biggest store on Main Street. Now on the final gala night of the country fair, it was to be raffled off. After watching the fireworks, I stayed in the shadows at the edge of the throng for the climax. The drawing of the winning number, draped in bunting on a special platform. The view glittered under a dozen spotlights. The crowd held its breath as the mayor reached into the glass bowl for the lucky ticket. कई सप्ताहों के लिए कार रोड मास्टर गली के सबसे बड़े स्टोर के खिड़की के सामने लगा हुआ था। गांव के मेला का अंतिम रात था। समारोह के बाद इसे पुरस्कार के रूप में दिया जाना था। आतिशबाजी देखने के बाद मैं भीड़ के किनारे विजेता को देखने के लिए रुका। कार रंगीन झंडों से सजी हुई थी। वह कार एक विशेष प्लेटफॉर्म पर रखी हुई थी जो कि दर्जनों लाइटों से चमक रही थी। भीड़ की सांसें रुक गई जब शहर के मेयर विजेता के नाम को जानने के लिए उस मंच पर पहुंचे और शीशे के कटोरा से लकी टिकट निकालने गए। Never in my most extravagant yearnings had it occurred to me that Lady Luck would smile upon the only family in the town without a car. But the loudspeaker boomed my father's name. By the time I had worn my way up to the platform, the mayor had presented my father with the keys and he had driven off amidst tears. मेरे असाधारण इच्छाओं में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। महिला किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान हुआ और लाउड स्पीकर के द्वारा मेरे पिताजी का नाम बोला गया विजेता के रूप में। मैं उन भीड़ से गुजरते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां मेरे पिताजी को गाड़ी की चाबी प्रदान की गई। वो इस गाड़ी को भीड़ जो कि जयकारा कर रही थी, खुशियां मना रही थी, उसको चीरते हुए आगे की ओर ले चले। I made it home in record time. The house was dark save for the lights in the living room. The Buick stood in the driveway, glistening in the glow from the front windows. From the garage, I heard a snuffle from bar keys. Panting from my run, I touched the car's smooth surface, opened the door and got inside. The luxurious interior had that wonderful new car smell. I studied the gleaming dashboard, turning my head to reveal in the cushioned vista of the back seat. I saw my father's sturdy figure through the rear window. He was pacing along the pavement. I slammed the door and rushed over to him. "Leave me alone," he snarled. If he had clubbed me over the head, I could not have been more shocked. I went into the house. मैं रिकॉर्ड समय में घर पहुंचा। घर में अंधेरा था। कार रास्ते पर खड़ा था जो आगे खिड़की से चमक रहा था। गैराज से मैंने बारिश की आवाज सुनी। दौड़कर हाँफते हुए मैं उस कार के चिकनी सतह को छुआ, दरवाजा को खोला और उसके अंदर बैठ गया। शानदार इंटीरियर और अद्भुत की खुशबू अद्भुत थी। मैंने चमकते हुए पैनल का अध्ययन किया। खुशी में मैं अपने सर को पीछे वाली खिड़की की ओर ले गया। वहां मैंने पीछे वाली खिड़की से पिताजी को पगडंडी पर पैदल चलते हुए देखा। फिर मैंने अपने कार के दरवाजा को खोलते हुए उन्हें अंदर बैठने के लिए बोला। तब वह चिल्लाए, "मुझे अकेला छोड़ दो।" अगर वह मेरे सर पर मारते तो मैं इतना दुखी नहीं होता।
मैं चौंकते हुए अपने घर पर पहुंचा। आखिर ये हो क्या गया है पिताजी? Mother met me in the living room. Don't be upset, she said. Your father is struggling with an ethical problem. We have to wait until he finds the right answer. माँ मुझे बैठक घर में मिली। उन्होंने कहा, अपसेट मत हो, बुरा मत मानो, तुम्हारे पिता नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे हैं, नैतिकता से जूझ रहे हैं। जब तक वो सही प्रश्न नहीं पा लेते हैं तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। What is ethical about winning a view? The car may not be ours after all. There is a question. कार जीतने में नैतिकता क्या है? तो उसकी मां ने बोला, आखिरकार कार तो हमारा नहीं है। यह एक प्रश्न। I shouted hysterical. How can there be a question? It was announced over loudspeaker. मैंने झुंझलाते हुए चिल्लाया, ये कैसे एक प्रश्न हो सकता है? लाउड स्पीकर पर नाम बोला गया था। Come here, son. On the table under the lamp were two raffle stubs, number 348 and 349. The winning number was 348. Do you see the difference between the two? Mother asked. यहाँ आओ बच्चे। टेबल के ऊपर रखे लैंप के नीचे दो टिकट था। पहला का नंबर 348 और दूसरा का 349 था। मां ने बोला, क्या तुम्हें इन दोनों में अंतर दिख रहा है बच्चे? I looked carefully. The only difference I can see that 348 won. मैं केवल एक ही अंतर देख पा रहा हूं, 348 जीता है। Hold 348 to the light and looked hard. 348 वाले टिकट को प्रकाश में रखकर गौर से देखो। It required a lot of looking to see the faint letter K dimly marked in a pencil on the corner. Do you see the K? Just barely. It stands for Kendrick. Jim Kendrick, that boss? Yes. उस टिकट को लाइट में ले जाकर गौर से देखने पर पेंसिल से एक कोने पर के लिखा हुआ दिखता है। बच्चा पूछता है कि ये के क्यों लिखा हुआ है? तो उसकी मां बताती है कि केंड्रिक के लिए लिखा हुआ है। तो वो बोलता है, जिम केंड्रिक, पिताजी के बॉस? हाँ, उसकी मां जवाब देती है, पिताजी के बॉस के बारे में ही लिखा हुआ। She explained, my father had asked Jim if he wanted to buy a ticket. Jim had mumbled, why not, and turned back to what he was doing. It may never have crossed his mind again. Dad then bought 2 tickets in his own name with his own money, marking 348 for Kendrick, a scarcely discernible thin mark on a one stop that could be obliterated by the slightest rub of a thumb. उसकी मां ने बताया कि पिताजी ने अपने बॉस से पूछे, क्या आप टिकट खरीदना पसंद करोगे? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। शायद आपके पिताजी के बॉस काम में मशगूल थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और वो भूल गए होंगे। आपके पिताजी ने अपने पैसे से 2 टिकट 348 और 349 नंबर के लिए नंबर वाला खरीदा और एक टिकट के कोने में के लिख दिया जो उनके बॉस केंड्रिक के लिए था, जिसे एक अंगूठे के से आसानी से मिटाया जा सकता है।
To me, it was an open and shut case. Jim Kendrick was a multi-millionaire. He owned a dozen cars. He lived on in a estate with a staff of servants, including 2 chauffeurs. Another car meant less to him than a snaffle on Barkey's harness meant to us. I urged, Dad's got to keep it. मेरे लिए ये बहुत ही आसान मामला था। मिस्टर बार्किस के पास दर्जनों कार थे, दर्जनों नौकर थे, दर्जनों प्राइवेट ड्राइवर थे। उनके लिए एक और कार का कोई मायने नहीं था, उनके लिए एक और कार कोई मायने नहीं रखती थी। जैसे कि हमारे बार्किस के ऊपर सिंह जेट कोई मायने नहीं रखती है। तो मैंने जवाब दिया कि यह कार हमें अपने पास ही रख लेनी चाहिए। I know he will do what's right, mother said calmly. मां शांतपूर्वक बोली, मैं जानती हूं वह जो सही होगा वही करेंगे। At last we heard Dad step on front porch. I held my breath. He went straight the phone in the dining room and dialed. Kendrick's phone rang for a long time. A servant finally answered. From what Dad said at our end, I could tell that Kendrick had to be awakened. तब हमने पिताजी की आवाज आगे वाले बरामदा से सुनी, उनकी पैरों की आवाज। वह आए और सीधे डाइनिंग रूम में चले गए। वहां से फोन उठाया और उन्होंने केंड्रिक को कॉल किया, अपने बॉस को। कुछ देर तक रिंग होने के बाद केंड्रिक के नौकर ने फोन उठाया और पिताजी ने अपनी बातों को कह दिया। मेरा कहना था कि अगर केंड्रिक जागरूक होता तो उसे कार दिया जा सकता था। He was annoyed at being roused from sleep and was far from pleasant. My father had to explain the whole thing from the beginning. The next afternoon, Kendrick's 2 chauffeurs arrived in a station wagon. Before driving the Buick away, they presented Dad with a box of cigars. उसके पिता के बॉस जगाए जाने के कारण बहुत दुखी थे, बहुत गुस्सा थे। जब वो फोन पर आए तो मेरे पिता ने शुरुआत से सारी बातों को समझाया। अगले दिन उनके बॉस के 2 प्राइवेट ड्राइवर आए, गाड़ी को ले गए और उन्होंने बदले में एक सिगार के बक्सा पिताजी को प्रदान किया। We didn't get a car until after I was grown up, but as time went on, my mother's aphorism, if you had a character, you have the better part of the way. Well, took on a new meaning. Looking back over the years, I know now we were never richer than we were at the moment when Dad made that telephone call. हम लोग तब तक एक नया कार नहीं ले पाए जब तक हम बड़े ना हो गए। मेरी माँ यही कहकर दिलासा दिलाती थी कि अगर आपके पास आचरण है तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है। अब उन बीते हुए वर्षों में देखने पर आज हमें महसूस होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कभी भी उतना धनी नहीं थे जिस दिन हमारे पिताजी ने फोन लगाकर अपने बॉस को सारी बातें बताई थी। वो दिन शायद हम सबसे ज्यादा धनी थे। तो जॉन ग्रिग्स के द्वारा लिखी गई कहानी यही समाप्त होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क आपको दिए जाएंगे। आप स्कूल के ऑफिशियल साइट पर जाकर अपने होमवर्क को डाउनलोड कर सकते हो और होमवर्क पूरा कीजिए। स्कूल खुलने के बाद आपके होमवर्क को चेक किया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो इस वीडियो के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या स्कूल के वेबसाइट पर जाकर आप लिख सकते हैं इंक्वायरी सेक्शन में।
क्वेरी सेक्शन में आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। मैं अरविंद मिश्रा इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ।